Okay, so in earlier chapter, we also discussed basic characteristics of Indian economy as a developing economy. So can anybody tell me what are the characteristics of Indian economy, basic characteristics of Indian economy as a developing economy? Why we called Indian economy as a developing economy? Why we called Indian economy as a developing economy? I have already discussed all these things elaborately. I have even given notes with respect to this particular chapter. And for the regular students, I have discussed all these things. So, but I सर think, huh, बिकॉज just इंडियाची पर कॅपिटा इन्कम डेव्हलप्ड कंट्रीपेक्षा कमी आहे म्हणून आपण डेव्हलपिंग स्टेजमध्येच आहे. हा आता तर आपण आणखी कुठल्या स्टेजमध्ये जाऊ आपल्यालाच माहिती नाहीये है ना. ऑलरेडी डेव्हलपिंग आहोत तर डेव्हलपिंगच्या आणखी कुठे जाऊ काय माहिती. आता सगळ्या जगभरातला नकाशा चेंज होणार आहे. डेव्हलपिंग, डेव्हलप, अंडर डेव्हलपचा. हा काही दिवसानंतर, काही वर्षानंतर. एनिवे, सो वी आर हॅव्हिंग लो पर कॅपिटा इन्कम. First thing that we noted last time, that is we are having, that is the countries like India. Why the countries like India, or specifically if we are talking about India, so why India is a developing country? Because of the low per capita income. Okay, that was one thing. Then occupational pattern, है ना? Occupational pattern. So what is occupational pattern in India? Most of the people in India, they are dependent on the agriculture activities. Okay, agriculture and related activities. So the occupational pattern is still agriculture. Most of the people, they are dependent on agriculture. Even if today we consider what is the contribution of agriculture in the economy, then that is around 60 to 70% population, है ना. भारत की जो 60 to 70% पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर करती है, मतलब खेती करती है, और खेती से रिलेटेड जो भी दूसरे जो और प्राइमरी जो प्रोफेशंस है वो करती है. एंड that's why अगेन वी कम्स अंडर डेवलपिंग स्टेज. टोटल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यूएस जैसी जो कंट्री है, यूएसए है ना. So in USA, if you see the people, those who engage in agriculture, so that are very less. Okay, that are very less. That are not like India. म्हणजे 60-70 सोडून द्या, 6% पण नाहीये, है ना. See, हाँ, unequal distribution of assets, capital formation. हाँ, साहिल gave an answer, unequal distribution of assets वगैरह. Anyway, so झाले 27 लोक झाले आता. So we are having that occupational pattern as agriculture and the other related professions, okay, which are related to agriculture. So if you compare with the developed countries, so in developed countries, not even the 6% people engage in agriculture profession. They are totally industrialized, है ना. त्यांचं जे आहे ते टोटली इंडस्ट्रियलायझेशन झालेलं आहे. त्याच्यानंतर आणखी आपण हे केलेलं होतं, डेव्हलपिंगचं आणखी थर्ड हे बघितलं होतं की वी आर हॅव्हिंग हेवी पॉप्युलेशन प्रेशर. So if you see the population pressure of India, so India is having heavy population pressure. जे आपल्या देशामध्ये प्रचंड प्रमाणात पॉप्युलेशन आहे, है ना. आपण बिलकुल त्या बाबतीमध्ये, है ना, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे पॉपुलेशन के इसमें, है ना. चाहे कोई कितना भी ट्राई कर ले, बट हम हमारा जो नंबर है वो बिल्कुल फर्स्ट तक तो लेके जाएंगे. ये हमारा पॉपुलेशन का एम होता है. सो we are having great population. And if you consider, there is new terminology in the market which is called as human resource development. Means earlier population was taken as a म्हणजे बोलते ना कि boon or a bane. Okay, so population was not considered as a positive sign. But nowadays there is new concept which is HRD, human resource development. So even if there is a great population, that is, we should not take it as a negative aspect of a country. Rather we can focus on development of that population, skill based population. अगर आप सोच लीजिए कि अगर हमारे देश की पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन है वो, अगर इफ दे आर गेटिंग गुड एजुकेशन, इफ दे आर गेटिंग गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, if they are getting good skill development, and if technologically they are advanced, and if they are skilled, so they will get jobs everywhere or anywhere in the world. They will not remain unemployed.
even if you are considering a agriculture industry. So in agriculture industry also, if you see, uh, if our population is skilled, means if your agriculture um, professionals, if our agriculture is become agriculturist professionals, then we can see that they can develop themselves. So heavy population is one aspect of deciding the country whether it is a developed or a developing. With respect to India, since we are having great population, but most of the population, a size, a huge size of that population is unskilled, and that's why it comes as a burden on the economy, है ना? हमारी जो population है वो अगर skilled होती है तो फिर वो ये नहीं होंगी, मतलब वो burden नहीं रहेगा। जो भी population है वो अगर suppose world में कहीं पे भी जाती है job के लिए या कुछ प्रोफेशंस के लिए, तो वहाँ पे वो अपना अच्छा टैलेंट ये कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि आवर प्रोफेशनल्स आर वर्किंग इन rest of the means other countries of the world, and that their income we are adding in the gross national product, है ना? हम जब जीडीपी और जीएनपी की बात जब करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सो हम क्या देखते हैं कि मनी अर्न बाय इंडियन नेशनल्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, फ्रॉम द अब्रॉड। सो वो हम क्या करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, जब हम कंसिडर करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को, सो वी ऐड दैट मनी। सो व्हाई अवर पीपल आर गोइंग आउटसाइड? बिकॉज दे आर स्किल्ड, है ना? गल्फ में जाते हैं लोग, तो कौन से लोग जाते हैं? मोस्टली दोज हु आर हैविंग स्किल, जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, या फिर those who are mechanical engineers, those who are electrical engineers, okay, and those who are instrumentation engineers. So basically they are having skill, that particular technology knowledge, and that's why they are getting good jobs in Gulf countries. So if you consider this population, uh, not negatively, and if you see this population as a positive aspect, but just to see population as a positive aspect will not do. If you want the development of our economy, and if you want to convert our developing into developed economy, then we need to give that particular skill to that particular population of your country. Okay, so heavy population pressure, this is one aspect of developing economy, but we can convert this particular negative aspect into positive aspect also. Okay, if you give skill development, if you give them best education, best technological education, best management education, best professional education of any side, medicines में दो, veterinary में दो। अभी मैं just आपको एक example देता हूँ कि अपना ही एक student है, so he is like pursuing his PhD from one of the central institution of India, and he is working in veterinary field. Okay, at a very young age, he is completing his PhD. Okay, he completed his basic degree from Mumbai itself, from the government college, which is the biggest in Asia. Then he pursued his further education, masters, and simultaneously afterwards PhD from one of the best institutions of India. And now he's saying that ki, sir, I am having best opportunities in the world. Okay, I can get job anywhere in the world. मतलब जो भी veterinary field है, वो बोलता है कि सर मुझे आज ही, मतलब मेरा जैसे ही मास्टर्स हुआ तो वैसे ही मुझे काफी सारे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज थी, because he is getting best education from best institutions, central institutions of India. So if you are getting that kind of education, so you won't remain unemployed. आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेंगी, वो केवल ऐसे नहीं कि आपको जस्ट आपका ये हो रहा है। देखो हमारे देश में अभी साइंटिफिक जो है, मतलब जो हम क्या बोल सकते हैं ना कि फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट यू शुड आल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू द साइंटिफिक इन्वेंशंस। अभी देखो ये कोरोना इमरजेंसी है, हर कंट्री जो है, हर कंट्री कोरोना इमरजेंसी में, एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, they are investing their time, energy and money into research. So can you imagine the importance of research? हाँ, लेकिन हमारे देश में उतना उस चीज के तरफ नहीं देखा जाता है। जैसे हमारे देश में बहुत कम स्टूडेंट्स बोलते हैं, जैसे अगर साइंस फील्ड का भी हो, सो इफ आई आस्क
सो एज अ काउंसलर, जैसे मैं, मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं हर साल 10th के और 12th के वगैरह। तो सर क्या करना चाहिए? तो कोई भी बच्चा साइंटिस्ट बनना है या फिर रिसर्च करना है, इन्वेंशन करना है, ये नहीं बोलता। वो जॉब ओरिएंटेड ही सोचता है, नहीं मैंने बीएससी कर लिया तो एमएससी वगैरह कर लूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल गेट सम जॉब, या फिर बीई कर लिया है। बट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, मतलब रिसर्च का जो माइंडसेट है ना, वो हमारे यहाँ पे बहुत कम है। दैट इज स्पेसिफिकली एट सर्टन प्लेसेस इन इंडिया। मतलब जहाँ पे जैसे अभी इफ यू आर गोइंग टू साउथ साउथ इंडिया, तो जैसे वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह के जो स्टूडेंट्स है, सो आई फील कि वहाँ पे थोड़ा सा वो है, बिकॉज दे आर हैविंग दैट स्पेस सेंटर्स वगैरह। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दे कम इन टू कॉन्टेक्ट विद दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज, एंड सो दे आर हैविंग, या फिर जहाँ पे ऐसी नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वगैरह होती है, सो इफ somebody come into contact with these places, then there can be development of these kind of bent of mind. But research is having its own importance. और रिसर्च से आप देख लो, अगर जस्ट अगर कोरोना इमरजेंसी पे कोरोना का अगर वैक्सीन निकल जाता है, हाँ, कोरोना इमरजेंसी पे कोरोना का अगर वैक्सीन निकल जाता है, तो उसका आप देखिए कितना सेल बढ़ जाएगा, बिकॉज एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट इज इन नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर वैक्सीन, उसके मेडिसिन, उसके वैक्सीन या वॉट एवर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। सो क्या हो रहा है ना, कि जैसे आपका पॉपुलेशन प्रेशर कितना भी हो, बट आप उस पॉपुलेशन प्रेशर को कन्वर्ट कर सकते हो पॉजिटिव एंगल से, अगर आप उस देश के यूथ्स को अच्छी शिक्षा देते हो, रिसर्च में डालते हो, मैनेजमेंट में डालते हो, मेडिसिन, वेटरनरी, एग्रीकल्चर, देयर आर सो मेनी फार्मास्यूटिकल्स, देयर आर सो मेनी फील्ड्स। ओके, so this is one example ki how your population even how your population even is a contributing factor for the development of economy। हाँ, अगर अनपढ़ रहती है तो फिर तो कोई काम की नहीं है, मतलब काम क्या करेंगे वो, लेबर का भी एक बहुत अलग इम्पोर्टेंस है। लेबर्स नहीं रहेंगे या फिर लेकिन स्किल्ड होना चाहिए, स्किल्ड, क्योंकि हर कोई फिर अगर आप लेबर हो तो आप देखते हो कि पावर्टी पावर्टी मतलब वो बोलते हैं ना कि मजदूर क्यों है, क्योंकि क्योंकि मजबूर है। वाई ही इज अ मजदूर? बिकॉज ही इज मजबूर है। स्कूल में नहीं गए, पढ़े नहीं, है ना, या फिर पढ़ भी रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, पावर्टी थी, ड्रॉप आउट हो गए, बैक टू द पैविलियन आ गए, खेती करने लगे या फिर खेती पे मजदूरी करने लगे। तो ये मजदूरी क्यों है? बिकॉज ऑफ मजबूरी, है ना। तो वो मजबूरी नहीं रहने चाहिए अगर डेवलप करना है हमारे कंट्री को। एनीवे, सो हमने फिर आगे देखा था कि प्रिवेलेंस ऑफ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो जस्ट दिस इज वन टॉपिक विच वी हैव डिस्कस अर्लियर, कि हमारे यहाँ पे क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट है। सो अनएम्प्लॉयमेंट की हमने कुछ टाइप्स भी देखी थी। जैसे हमारे यहाँ पे एक रेगुलर अनएम्प्लॉयमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक बेरोजगारी। फिर हमारे यहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फिर हमारे यहाँ पे डिसगुइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, डिसगुइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सो काफी सारे अनएम्प्लॉयमेंट के जो टाइप्स है उसके बारे में भी हमने बात किया था कि बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो, मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट ही है, बेरोजगारी है लोग, सो बेरोजगार लोग है तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना, इकोनॉमी का अपग्रेड होना, अपडेट होना, या फिर बहुत अच्छे लेवल पे जाना, इट वोंट बी पॉसिबल। ओके, सो दैट्स व्हाई दैट अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने क्या कहा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट? आय हॅव डिस्कस ऑलरेडी। साहिल, तू सांगितलं होतं याचा आन्सर आय थिंक याच्या आधी। सर, एम्प्लॉयमेंट म्हणजे ज्यांना म्हणजे काम भेटतं, आणि अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे की तुम्ही एवढे शिकलेले असून पण तुम्हाला त्याच्यापेक्षा खालच्या कॅपॅसिटीचं काम मिळतंय। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, नाही, अंडर एम्प्लॉयमेंट आणि अनएम्प्लॉयमेंटचा डिफरन्स। अंडर एम्प्लॉयमेंट म्हणजे काय सर? माझ्याकडे म्हणजे कोणतीतरी इंजिनिअरिंगची डिग्री आहे एका मुलाकडे आणि त्याला त्याच्यापेक्षा खालच्या दर्जाचा जॉब मिळतोय। हा, बरोबर आहे, म्हणजे तो आहे बी मेकॅनिकल, परंतु तू मेकॅनिकचं काम करतोय, है ना, हो. म्हणजे अ पर्सन इज अ बी मेकॅनिकल, but he is, so be mechanical, if a student is having a degree of B in mechanical engineering, but what he is doing, मैकेनिक का जॉब कर रहा है, गाड़ियां खोलना, बंद करना, सुधारना वगैरह वगैरह, है ना, ऐसी सिचुएशन भी है काफी जगह पे। या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है,
और वो जो इलेक्ट्रिशियन का काम रहता है वो कर रहा है. So these are cases. So that is what this is the underemployment. मतलब you are having a degree, आपका M.Pharm हो चुका है और आप फार्मास्यूटिकल के दुकान में आप वो गोलियां बेचने का काम कर रहे हो. मतलब you are like a वन ऑफ द सेलर, है ना, जॉब पे हो. काफी सारे बी फार्म स्टूडेंट्स है आज की डेट में. काफी सारे जो फार्मास्यूटिकल्स शॉप्स होते हैं उसमें वो अपना डिप्लोमा या डिग्री दे देते हैं और 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं. सो दे आर हैविंग गुड अपॉर्चुनिटी. Sorry, they are having good educational background, but they are doing that job which is not as per their status, as per their knowledge, as per their degree professional. So that is underemployment, and these you can find these cases in India, okay, in developing countries. Or unemployment means what? कि job ही नहीं मिल रहा है. Unemployment means what? Job ही नहीं मिल रहा है. So, okay, so this is a difference between underemployment and unemployment, which we discussed, and this is prevalent in India. That's why we are becomes underdeveloping. Then steadily improving rate of capital formation, ये भी एक हमने देखा था कि जैसे capital formation का जो है तो वो रेट यहाँ पे बढ़ता है, उसके बारे में भी हमने बात की थी. Then we discuss mal distribution of wealth assets. माल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और एसेट है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी इसके पहले. देन वी डिस्कस पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल. सो पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल मींस व्हाट कि व्हाटएवर द ह्यूमन कैपिटल वी आर हैविंग, सो दैट ह्यूमन कैपिटल इज नॉट गुड. मतलब क्या है कि वी आर हैविंग मास इलिटरेसी, है ना, वी आर हैविंग वेरी इम्प्रैक्टिकल माइंडसेट. जैसे वी आर फैटलिस्ट, है ना. फैटलिस्ट मतलब क्या है कि हमारे यहाँ की जो जनता है वो बोलती है अरे मेरे भाग्य में होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना, मेरे नसीब में होगा, हाँ मेरे नसीब में तू है कि नहीं, गाना भी है इस पे. तो मेरे नसीब में अच्छा जॉब है कि नहीं, ये है कि नहीं, वो है कि नहीं वगैरह. सो फैटलिस्ट क्या है, तो नसीब में होगा तो होगा, तो फिर नसीब में है तो फिर बस नसीब का वेट करते रहो, पढ़ो मत, लिखो मत, कुछ भी मत करो, है ना. सो ये इस तरह की मेंटालिटी है. सो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन मेनी सोसाइटीज ऑफ इंडिया. जैसे एक ये है कि जैसे और एक ओरिएंटेशन होता है हमारे यहाँ पे कि व्हाई देयर इज नो डेवलपमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल, स्पेशली इफ यू कंसिडर वुमेन. सो आज भी in the 21st century we need to run separate campaigning for the empowerment of the women, separate campaigning for increasing health standards of women community, separate campaigns for improvement in the literacy rate of the women. क्यों? क्योंकि लोगों की पहले क्या सोच थी कि नहीं यार ये बच्ची है, लड़की है, पढ़ेंगी लिखेंगी तो क्या करेंगी, 18वें साल में 20वें साल में तो शादी कर देना है, फिर पराया धन होता है वगैरह 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 वगैरह. ऐसी बेहूदी बातें जो है तो वो हमारे मासेस में चलती थी, अभी भी चलती है. एंड द सिचुएशन इज कंपैरेटिवली गुड इन महाराष्ट्र लाइक स्टेट, बट इफ यू गो टू सर्टन स्टेट्स ऑफ इंडिया, okay, so this backwardness is still prevalent, okay, and that's why we don't have good quality of human capital. मतलब हम लोग हमारी सोच की वजह से ये जो अच्छे अच्छे टैलेंटेड महिलाएं आगे आ सकती थी, उसमें से काफी सारी महिलाएं अच्छी अच्छी ब्यूरोक्रेट्स बन सकती थी, साइंटिस्ट बन सकती थी, टीचर्स बन सकती थी, मैनेजमेंट में आ सकती थी, आगे आ सकती थी. तो हमने हमारा जो एक पर्टिकुलर एक सोच है उसकी वजह से हमने उनका जो टैलेंट है उसको किल कर दिया, है ना. तो दिस इज अ वेरी व्हाट यू कैन से हार्डकोर फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन मासेस. कंजर्वेटिज्म है हमारे यहाँ पे, व्हाट यू कैन से कंजर्वेटिव मानसिकता, है ना. कंजर्वेटिव मानसिकता मतलब चलो नहीं करना है, बस इतना ही पढ़ाना है, आगे नहीं पढ़ाना है. सो दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी, ओके. देन कास्ट डिस्टिंक्शन इज आल्सो देयर. सो इस तबके के लोग पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, ये भी हमारे यहाँ पे मेंटालिटी है. सो ये कंजर्वेटिव मानसिकता है, एंड दैट्स व्हाई दिस आल्सो contributing in our as remain status, that is a developing economy, okay. So then prevalence of low level of technology की अगर बात करते हैं तो देखो
आज इतने सिचुएशन में हमारे पास मतलब जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी इतने बड़े पैंडेमिक को कंट्रोल करने की, तो वो टेक्नोलॉजी जिस तरह से चाहिए थी, कंसिडरिंग द मोस्ट सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, सो वी डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी, वी नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, है ना। तो उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। देन लो लेवल ऑफ लिविंग ऑफ एवरेज इंडियन, ओके, देन डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, है ना। सो ये हमने डिस्कस किया था। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ कंजम्पशन, उसको भी हमने डिस्कस किया था। सो दीज आर द थिंग्स विच वी ऑलरेडी डिस्कस विथ रिस्पेक्ट टू अवर इंडियन इकोनॉमी एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। एंड देन मेजर डेवलपमेंट इश्यूज क्या है, तो यही जो हमने पहले पढ़ा है। सो दैट आर लाइक मेजर इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू अवर डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ था, डिस्कस किया हुआ, विच इज रिलेटेड टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। उसको हमने फिनिश किया था पहले ही, हम लोग काफी सारा लिख चुके हैं, इसके ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं। एंड आई हैड गिवन असाइनमेंट्स टू रेगुलर बैच स्टूडेंट्स। सो सेकंड जो हमने डिस्कस किया था, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट वी डिस्कस। तो उसके बारे में भी हमने कहा था कि द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेजेस। सो हमारे देश का जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में हमारा जो स्ट्रक्चर था, जो ऑर्गेनाइजेशन था विलेज का, वो कैसे था। सो वी डिस्कस कि देयर वाज अ बार्टर सिस्टम इन सोसाइटी, है ना। बार्टर मतलब क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स वाला सोसाइटी था हमारा। एक ये अगर लेना है किसी को, इफ सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज अ iron smith, there is a person who is into the profession of pottery. So they were exchanging that particular commodities to agriculturists, and they were taking some wheat or the rice from the agriculturists. So इस तरह का हमारा सिस्टम था। उसमें काफी फिर चेंजेस आते गए। टाउन्स का, विलेजेस का कैरेक्टर क्या था कि जैसे आप अगर मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना है क्या आपने? हैव यू हर्ड नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद? हैव यू हर्ड नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद? Yes, sir. हाँ, so Munshi Premchand, he wrote a very famous novel. Anybody can tell me novel Munshi Premchand? So what is the name of novel, famous novel written by Munshi Premchand? Any idea to anybody? अरे मुंशी प्रेमचंद किसी ने नहीं सुना? संयुक्ता, संजना बताओ। संजना, यूपी से हो तुम, बताओ। संजना आवाज आ रही है? यस सर। हाँ संजना, मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना है क्या? सर सुना तो है बट मालूम नहीं है इतना। अच्छा, उनका वो नोवेल नहीं पता है तुम्हें? हाँ सर। ओके। सर्वेश कावळे माहिती आहे का रे तुला मुंशी प्रेमचंद? करिश्मा मोहिले माहिती आहे मुंशी प्रेमचंद? करिश्मा मोहिले मुंशी प्रेमचंद माहिती आहेत का? अच्छा, निर्मला, अच्छा निर्मला, ओके, निर्मला उपन्यास, ठीक आहे। अच्छा, नाही एक फेमस आहे, गोदान नावाचं एक उपन्यास आहे त्यांचं, गोदान। ओके, गोदान नावाचं मुंशी प्रेमचंदचं गोदान, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी फेमस नॉवेल ऑफ मुंशी प्रेमचंद। और आप देखो हिंदी मूवीज में ना, जो हम लोग बात करते हैं ना ये इंडियन इकोनॉमी की, तो फिर उससे रिलेटेड उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हम मूवीज में भी देखते हैं। अगर आप 60s की अगर मूवी देखते हो, 60s की, 50s 60s में जो मूवीज आई थी, so in that movies we can see the impact of this particular Indian economy, कि कैसे था, गाँव का स्ट्रक्चर कैसा था, वहाँ उसकी उस समय की स्टोरी और अब की जो स्टोरी है 2021 की या 2000 ऑनवर्ड्स की मूवीज की स्टोरीज और 1960s की मूवीज की स्टोरीज, उसमें फर्क है। So many of the novels which were written during those period,
that revolved around the situation in the towns, situations in the village, and there were very regular characters. Okay, regular characters वो movies में रहते थे, और वो जो writers लिखते थे उनके novels का भी विषय यही रहता था कि भाई गांव के खेती करने वाले हैं, फिर वो गांव का जो साहूकार रहता है उससे कर्जा लेते हैं, मनी लेंडर्स, और फिर वो मनी लेंडर या फिर जमींदार साहूकार जो है वो बिल्कुल वो जो खेती करने वाला जो किसान है उसको उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, फिर उसकी वो सुसाइड कर लेता है या फिर हत्या होती है या फिर जमीन जो है उसको एक्वायर किया जाता है, जबरदस्ती से अंगूठा लिया जाता है वगैरह वगैरह. सो दीज वर द कैरेक्टर्स. 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया. if you watch these movies, you can see the subject matter of these movies that revolves around particular farmers issue or the agriculturist issue. और फिर उसमें साथ ही साथ वो भी आता है उस पिक्चराइजेशन में कि गांव की इकोनॉमी कैसे थी, विलेज इकोनॉमी कैसे थी, है ना. फिर विलेज टू टाउन्स के रिलेशंस किस तरह से रहते थे, कौन इन्फ्लुएंशियल रहता था, किसका सेपरेशन होता है, ये सारा का सारा. तो ये दिस इज, you don't consider this as a another part from the Indian economy. You can see the impact of Indian economy. You can see the realization of the Indian economy through the movies, है ना, through movies. क्योंकि क्या होता है ना कि मूवी अल्टीमेटली क्या होती है, या फिर राइटर्स जो लिखते हैं वो अल्टीमेटली क्या होता है बताइए. जो भी समकालीन जो राइटर्स लिखते हैं वो अल्टीमेटली क्या होता है, रियलिटी. हाँ, sometimes it is reality, sometimes it is like consideration. Okay, fiction. हाँ, fiction. हाँ, so fiction सुद्धा अंडर द इम्पॅक्ट ऑफ रिअलायझेशन असतं, म्हणजे प्रेझेंट सिच्युएशनला असतं, है ना. म्हणजे समजा एखादा जर चांगला रिअलिस्टिक रायटर असेल तर तो काय लिहिणार की आताच्या कंडिशन मध्ये कसं 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 आहे, मग त्याला काय काय जबाबदार आहे. सो कुछ लिखेंगे एकदम रेगुलर लैंग्वेज में, कुछ उसको नोवेल के फॉर्म में लिखेंगे, कुछ उसको स्टोरी के फॉर्म में लिखेंगे, कुछ लोग उसको पोएट्री के फॉर्म में लिखेंगे. बट अल्टीमेटली इट इज लाइक अ प्रेजेंट सिचुएशन, बिकॉज कंटेम्पररी सिचुएशन जो होती है वो हमारे राइटिंग्स के ऊपर, हमारे अगर somebody इज डायरेक्टर, कोई गीतकार है, लिरिसिस्ट है, कोई कंपोजर है, तो वो फिर स्टोरी वैसे ही बनाएगा. तो यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. फिर उसमें इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन होता है, इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन होता है ना. सो इसकी वजह से हमारी मूवीज अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर ये रिफ्लेक्शन होता है. तो इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए ये दिस यू नीड टू कंसिडर दिस थिंग ऑल्सो. सो हमने एट द टाइम ऑफ एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, दैट ऑल्सो वी डिस्कस. सो हमने उसमें देखा था कि विलेजेस का स्ट्रक्चर, गांव का स्ट्रक्चर क्या रहता था, रिलेशंस कैसे रहते थे एग्रीकल्चरिस्ट और अदर प्रोफेशनल्स एंड द मनी लेंडर जमींदार्स में, वो भी हमने देखा था. एंड देन ब्रिटिश कॉन्केस्ट के बाद फिर इंडियन इकोनॉमी का क्या किस तरह से स्ट्रक्चर रहा, किस तरह से कुछ डेवलपमेंट हुई, व्हाट ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इन इंडियन इकोनॉमी फॉर देयर ओन बेनिफिट, व्हाट वाज द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, है ना. कृषि का व्यवसायीकरण किस तरह से हुआ. जैसे हमने बात कही थी कि भाई रबर 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 है, या फिर जूट है, या फिर टी है, या कॉफी है. सो ऑल दिस थिंग्स, ओके, व्हाटएवर all these things, these means we were not in a need of these things like tea, coffee वगैरह. So British started commercialization of agriculture in India, and I have already discussed with you कि British took India as means we have seen the establishment of the British East India Company in India, है ना. हमने establishment of British East India Company भारत में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था पहले. तो उसमें हमने कहा था कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 16th सेंचुरी में, मतलब 1599 में उसका ये हुआ एस्टेब्लिशमेंट, एंड 1600 में अकबर के टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई. जहांगीर के टाइम में उन्होंने भारत का जो मुगल बादशाह था उससे परमिशंस लेना चालू कर दिया. सो 1600 टू 1757 दिस इज वन फेज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस समय उन्होंने केवल मर्केंटाइल पॉलिसी अप्लाई की. मर्केंटाइल पॉलिसी, मर्केंटाइल पॉलिसी. सो मर्केंटाइल पॉलिसी मीन्स totally related to the trading activities. So their main focus was to establish in India as a merchants. Okay, and then they settled down in India. 1757 के बाद की फिर उनकी जो पॉलिसी है, that is with respect to establishment of their
political power, administrative power in India, है ना? तो 1757 after the battle of Plassey, you can see that कि they totally focus their concentration on establishment of their politico administrative power, है ना? तो फिर वो भी उन्होंने किया और फिर 1858 के ऑनवर्ड से तीसरा फेज स्टार्ट होता है, दैट इज द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना, टिल इंडिपेंडेंस, है ना? तो वो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो इसमें जो फर्स्ट फेज थी और फिर सेकंड फेज जो थी उसमें हम देखते हैं कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो विद द इन्वेंशन ऑफ रेलवेज व्हाट ब्रिटिश डिड, ब्रिटिश लोगों ने रेलवे का इन्वेंशन किया। फिर रेलवे का इन्वेंशन करने के बाद 18th century is such a century when industrialization म्हणजे काय, औद्योगिकरण, industrialization started in Britain, and by 19th century you can see that industrialization moved from one place to another place, one country to another country. So industrialization started first time in Britain, and then it moved from Britain to rest of the countries of the world. Okay, and then India as a colony of Britain, industries were located at Britain, and there were crops, there were traditional crops, and British also started commercialization of agriculture, so there were commercial crops. So India, like colony, emerged as a suppliers to the British, raw material suppliers to the British, and British taken these raw agriculture materials from India to Britain, and in Britain these raw material processed through the industries, through the machineries, and finally converted into finished goods. So फिर ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था कि फिनिश गुड जो होते थे वो फिर इधर भारत में भेज देते थे, या जो भी अलग अलग जो उनकी कॉलोनीज थी वहां पे भेज देते थे। एंड इन दैट मैनर वी कैन सी दैट कि देयर आर क्रिटिक्स लाइक दादाभाई नौरोजी, या फिर R.C. Dutt, and even after that Dr. Babasaheb Ambedkar. So and there were so many other critics also. So they criticized the British government for the exploitation of the Indian economy. Okay, for the exploitation of the Indian economy. So हमने उसके ऊपर भी चर्चा की थी। तो ये उसका एक जस्ट मैंने आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता दिया, और ये ऑलरेडी हमने चर्चा किया है। So British exploited Indian economy in this manner during the pre-independence period. लेकिन उस समय उन्होंने जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था, जैसे जूट का होगा, कोकोनट होगा, फिर शुगर केन होगा, या फिर आपका टी है, कॉफी है, रबर प्लांटेशन है। So whatever they established in India for their own benefits, they established railway routes in India. They introduced railway routes in India. They also introduce this network by roads, है ना? Then at the same time they also started, or they gave boost to waterways, है ना? So ये सारा का सारा जो उन्होंने स्टार्ट किया उनके फायदे के लिए किया, लेकिन ultimately when they return back to their respective nation, these things whatever they developed, that means that considered as a beneficial things for the development of our own country. So हमें जब स्वतंत्रता मिली, पॉलिटिकल स्वतंत्रता जब हमें मिली, so उस समय के बाद फिर ये सारी चीजें हमारी थी तो हमारी हो गई, and then our government also started use of all these things, है ना? So ये हमने देखा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत में किस तरह से किया गया है। 5-year प्लान्स में हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट एम्फेसिस था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सेकंड हमारा एम्फेसिस था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड हमारा एम्फेसिस था सेल्फ सफिशिएंसी थर्ड 5-year प्लान में। सो बाकी सब चीजें जो है हम लोग करते गए, और भारत में भी फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो गति थी that started improving, and then afterwards we can see that from the second plan onwards we also adopted this industrialization policy, and government of India after independence adopted so many policies through the 5-year plan,
for the development of Indian economy. Okay, so इथपर्यंत मला वाटतं आपण सगळ्या गोष्टी घेतलेल्या होत्या. Okay, so this was just a revision of earlier two chapters which are very important and related to Indian economy at the time of independence. And earlier chapter was related to the status like developed, underdeveloped, or developing economy. So what is the criteria to identify that? And with respect to these two chapters, some statistics is also there. With respect to first chapter, there was a statistics which I told you you should get. Second chapter चे notes नव्हते दिले. नाही, मी लिहून दिलं होतं ना बरचसं सेकंड चॅप्टर मध्ये. नाही सर, नव्हतं लिहून. तर काहीच नव्हतं दिलं तुम्ही. लिहून नव्हतं दिलं का? नाही, फक्त तुम्ही मग ते मुंबईचं वगैरे स्टार्ट केलं होतं. नाही, मला एक सांगा की सेकंड चॅप्टरला आपण हेडिंग दिली फक्त. अरे सेकंड चॅप्टर मी डिस्कस केलं होतं ना, सगळं डिस्कस केलं होतं मी तुम्हाला. नव्हतं दिलं. ऑर्गनायझेशन ऑफ विलेज. नाही सर, काय नाही दिलं. अरे बाबा, मी तुम्हाला त्याचे फक्त हे दिले होते, काय म्हणतात त्याला, की द स्ट्रक्चर अँड ऑर्गनायझेशन ऑफ विलेजेस. मग ते आपण डिस्कस करत गेलो होतो. मी तुम्हाला त्याच्या टायटल्स दिले होते, म्हणजे त्या चॅप्टर मध्ये मी तुम्हाला टायटल्स दिले होते फक्त, बरोबर. त्याचं मी म्हटलं की एक्सप्लेनेशन मी फक्त असंच करतो समजून घ्यायसाठी, कारण ते काही आता आपल्याला एक्झाम पॉइंट म्हणजे आता आपल्याला त्याचं माहिती नाहीये, म्हणजे त्याचं जास्त इम्पॉर्टन्स नाहीये सध्या. फक्त ते इट वॉज लाईक जस्ट अंडरस्टँडिंग पार्ट की व्हॉट वॉज अवर इकॉनॉमी ड्युरिंग दॅट टाइम. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल स्ट्रक्चर अँड ऑर्गनायझेशन ऑफ विलेजेस, स्ट्रक्चर अँड कॅरेक्टर ऑफ द टाउन्स, आणि मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ते तुम्ही मी जसं बोलते तसं लिहून घ्या म्हणून. ह्या गोष्टी मी दिल्याचं तुम्हाला आठवतं. आता बरेच दिवस झाले त्याला, एक 10-15 दिवस आहे की नाही. त्यानंतर मग इंडस्ट्रीज अँड हँडीक्राफ्ट्स इन प्री ब्रिटिश इंडिया सांगितलं होतं मी तुम्हाला. मुस्लिन होतं, कॅलिकोज होतं, सांगितलं नव्हतं का? आठवा. हे लिहून दिलं होतं मी. चिंते सर असा कसा, तुम्ही बघा तुमच्या नोट्स. ऋतुजा बघ तुझ्या नोट्स बघ, हे मी सांगितलं होतं, लिहून दिलं होतं हे. नाही सर, नाहीये माझ्याकडे. असं कसं, मी हे लिहून दिलं ना तुम्हाला. मी तुम्हाला सर सांगितलं मेजॉरिटी विन्स नाहीये सर. मेजॉरिटीचा हे नाहीये, पण मी हे तुमच्याशी डिस्कस तर केलं होतं ना. हे मुस्लिम ऑफ ढाका, कॅलिकोज ऑफ बेंगॉल. नाही, तुम्ही तुमच्या चेक करा. कॅलिकोज ऑफ बेंगॉल, सारीज ऑफ बनारस, हे सगळं मी दिलं होतं तुम्हाला. इंडस्ट्रीज अँड हँडीक्राफ्ट. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला, मला आठवते की डिक्लाइनिंग. सर तुम्ही ते डिस्कस केलेलं, पण तुम्ही बोललेलं की लिहिणं एवढं ते इम्पॉर्टंट नाही, एवढं चॅप्टर फक्त. ओके, पण मी तुम्हाला त्या काही ज्या नोट्स होत्या ना, म्हणजे काही गोष्टी मी तुम्हाला डिक्टेट केल्या होत्या, ते लिहायला सांगितलं होतं की हे करा. आता तुम्ही लिहिलं की नाही लिहिलं ते नाही माहिती मला, पण मी ते तुम्हाला सांगितलं होतं की एवढं जे आहे ते तुम्ही लिहून घ्या. तर मला हे नक्की आठवते की मी तुम्हाला त्याचे अर्थ पण सांगितले होते, किंवा काही ठिकाणी मी तुम्हाला हे पण सांगितलं होतं की हे कुठून आलं, ते कुठून आलं. जसं आता हे मी सांगतो ना, मुस्लिन ऑफ ढाका. मुस्लिन मी सांगितलं होतं तुम्हाला की मलमल असते म्हणून, है ना. कॅलिकोज ऑफ बेंगॉल सांगितलं तुम्हाला. कॅलिकोज म्हणजे काय? सफेद कपडा, कापड. हे मला नक्की आठवते. तो तुम्ही आता ते लिहिलं नसेल किंवा दुसऱ्या वहीत लिहिलं असेल कदाचित. ठीक आहे. तर हे ऍक्च्युली हा जो पार्ट आहे फक्त दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टँडिंग की कशा पद्धतीची आपली सिस्टीम होती त्यावेळेसचं. अँड विशेष काही त्याच्यामध्ये हे नाहीये. आपण बाकीच्या गोष्टी डिस्कस केलेल्या आहेत. कमर्शियलायझेशन ऑफ ऍग्रिकल्चर डिस्कस केलं होतं आपण. फॅमिन्स वगैरे डिस्कस केलेले होते आपण. कॉजेस ऑफ फॅमिन्स काय काय होतं त्यावेळेसचं ते आपण डिस्कस केलेलं होतं. ठीक आहे. एनिवे, नाही हे सगळं मी केलेलं आहे डिस्कस तुमच्याशी. प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रान्झिशन इन इंडिया. कारण हे एवढं जर लिहित बसायला गेलो ना आपण, तर हा अर्थव्यवस्था इकॉनॉमी हा जो आहे, मी मीन्स आय एम ट्राइंग टू डिस्कस विथ यू सो मेनी बेसिक थिंग्स ऑफ इकॉनॉमी. म्हणजे अगदी आपलं राईट फ्रॉम द प्री इंडिपेंडन्स पिरियड टू इंडिपेंडन्स अँड देन पोस्ट इंडिपेंडन्स. ओके, इफ you are writing all these things, so the time will not sufficient to finish the relevant chapters of economy. Okay, so that's why we cannot waste our time over here.
इन रायटिंग इच अँड एव्हरीथिंग अबाउट द इकॉनॉमी. ओके, त्याच्यामुळे हे मी कदाचित तुम्हाला मग जास्त दिलेलं नसेल, पण मी हे सगळं डिस्कस केलेलं आहे तुमच्याशी. ठीक आहे. सो नेक्स्ट चॅप्टर इज अवर next chapter, and the most important chapter is our national income. Okay, national income. Now see this chapter, which is called as national income. It is relevant with respect to your examination, and you can get questions related to that. Previous two chapters, whatever we discuss, previous two chapters. Okay, पहिले chapter तर आपण सगळ्यात लिहून दिलेलंच होतं मी तुम्हाला. Everything developed, underdeveloped, developing वगैरे. हा पिक्स पाठवा. हा पिक्स पाठवतो मी नंतर. ठीक आहे. हा सो मी त्याचे तुम्हाला हे पाठवून देईल. मी आताच जे झालंय ना, जर तुमच्याकडे नाहीये त्याचं, तर मी एक हँड रिटन जे हे आहे ना, ते तुम्हाला मी मेसेज करून टाकेल व्हॉट्सअपला. ठीक आहे, नंतर. म्हणजे त्याचे फक्त मेन जे पॉइंट्स आहेत ना, व्हॉट पॉइंट्स नीड टू बी कन्सिडर, सो दॅट आय विल सी यू. दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम, बट दॅट इज जस्ट फॉर द अंडरस्टँडिंग ऑफ अवर इकॉनॉमी ड्युरिंग द पिरियड ऑफ इंडिपेंडन्स. ओके, दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. आणि हे नंतर मग जसं 5 year प्लॅन जे आहे ना, 5 year प्लॅन, सो 5 year प्लॅन इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक. अँड इन 5 year प्लॅन्स वी डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. सो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टँडिंग. जो सेकंड जो होता, तर त्याचे मी तुम्हाला तरी पण देऊन देणार ते. डोंट वरी अबाउट दॅट. बाकीचं जे आहे नॅशनल इन्कम, सो नॅशनल इन्कम इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक, अँड दॅट इज मोस्ट रिलेव्हंट ऑल्सो. दॅट इज मोस्ट रिलेव्हंट. म्हणजे ते खूप महत्वाचं आहे. कारण तुम्ही बघा, नेहमी युजली यू हर्ड अ नेम national income. So what is national income? है ना? So normally you will come across this particular terminology through newspapers also, through electronic media also. Okay, and in different statistics, this term is very important, and that is that this term is specifically related to consider the present status of our इकॉनॉमी. म्हणजे आपल्याला जर आपली इकॉनॉमी ची परिस्थिती काय आहे हे जर आयडेंटिफाय करायचं असेल, अँड इफ यू वॉन्ट टू गेट द क्लिअर पिक्चर अबाउट युअर इकॉनॉमी, then this particular terminology, that is national income, is very important. On the basis of national income, you can get the real picture of your economy. ठीक आहे. आता आपण we have discussed about GDP earlier. In definition, we have discussed GDP. We have discussed GNP also, gross domestic product, gross national product वगैरे. हे सगळेच्या फॅक्टर्स जे असतात, all these factors are important to calculate national income. Okay, so just हाँ बेटा था. So just write down first national income. Okay, national income, that is the chapter's name. National income of India rather. तर तुमचं व्हॉइस क्लिअर नाही येते. माझा व्हॉइस क्लिअर येत नाहीये. कोणाकोणाला नाही येत? हॅलो, आता येतोय आवाज माझा? हो सर. हो सर. ऐश्वर्या, तुला नाही येत आहे? सर नाही माहिती, येतोय आवाज. तुझ्या मोबाईल मध्ये काही इश्यूज असू शकतात, किंवा तू जर चेक करून बघ. चेक करून बघ. येतोय आता? हा, कनेक्शनचा प्रॉब्लेम असेल तुझ्या नेटचा. नेट बंद करून. हा, नेट बंद करून टाक तू. हा शुभम, तुझ्या नेटचा प्रॉब्लेम आहे. तू पण नेट बंद कर. हा, तू पण नेट बंद कर. डिस्कनेक्ट करून पुन्हा कनेक्ट करण्याचा करा, बघा काही होतंय का. ऐश्वर्या, आवाज येतोय का आता? डिस्कनेक्ट करून पुन्हा कनेक्ट करा. अडकतोय, अडकतात येतोय. अच्छा, खिडकी उघडी ठेव घराची, येऊन जाईल मग. नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल. हा, नेटवर्क असं काही झालं की समजायचं की नेटवर्कची कृपा आहे म्हणून. व्हिडिओ बंद करायला सांगा सर, व्हिडिओ बंद करायला. हा, व्हिडिओ बंद कर. व्हिडिओ बंद कर. सर आता येतोय. आता येतोय का? झालं मग. आता नेटवर्क प्रसन्न. हा, नेटवर्क प्रसन्न झालं की व्यवस्थित होतं. नेटवर्क हे नाही झालं की नाही होत. ठीक आहे, चलो ठीक आहे. नॅशनल इन्कम. हा रिया, थोडासा थोडासा अडकतो. जाऊ दे, ठीक आहे.
चलो फिर नेशनल इनकम राइट डाउन फर्स्ट डेफिनेशन. अडोय. हाँ, it estimate measures of national income estimate बंद करून परत measures. चालू करू का? हा कर ना, बंद कर आणि चालू कर परत. बंद करून चालू करू का? हो कर कर. तोपर्यंत मी डेफिनेशन कंप्लीट करून टाकतो मग. हे थांब ना ग, मला लेक्चर घेऊ दे ना डुबू. हा, पोरगी लय त्रास देते आमची. IASच बनायचं आहे म्हणते आतापासून. चलो नॅशनल इन्कम आली का ऐश्वर्या? ऐश्वर्याचं येणं फार महत्वाचं आहे. एकदम रेग्युलर असते ती. आली का ग ऐश्वर्या? आली का? कुठे गेली? आली आली. हा, आता आला का आवाज? आता येतोय ऐश्वर्या आवाज? हा ठीक आहे. येतो. हाँ ठीक है. ओके चलो बाय. हाँ चलो, नेशनल इनकम एस्टिमेट मेजर्स the volume of commodities and services, turn out during a given period comma counted without duplication. Okay. This definition given by National Income Committee. Okay, so national income म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्न ज्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये, है ना? So a national income estimate measures the volume of commodities. So the words are very important. The volume means what? Flow. Commodities, goods, है ना? Volume of flow, volume of commodities and services turn out during a given period, counted without duplication. It should not be duplicated. डबल नहीं होना चाहिए, एक ही बार उसका काउंट होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज का, जितनी कमोडिटीज एक साल में आती है या वॉट एवर द गिवन पीरियड उसका, एंड देन सर्विसेस. So without any duplication, turn out. So this definition is almost similar to your that gross domestic product. So with respect to gross domestic product, what we say, it is a money value of all goods and services, है ना? Money value of all goods and services in a given period of time, that is 1 year, है ना? तर त्याचं मनी व्हॅल्यू म्हणजे त्याचं पैशाचं मूल्य असतं ते जीडीपीच्या संदर्भात. इथे आपण काय म्हटलेलं आहे की द एस्टिमेट नॅशनल इन्कम एस्टिमेट मेजर करतं द वॉल्यूम ऑफ फ्लो, कमोडिटीज, गुड्स वगैरह and services, सेवा, turn out during a given period counted without duplication. So there should not be duplication. एक है मतलब एक बार उसको काउंट किया तो फिर से दोबारा उसको काउंट नहीं करना है. Okay, so this is a definition which is given by National Income Committee. Write down in the next para. Thus, a total of national income measures. The flow of goods and services. Thus, total of national income measures the flow of goods and services in an economy. National income is a flow. This particular description is very important to understand the basic of national income. Okay, national income is a flow. Flow मतलब तो प्रवाहित असतो, है ना? फ्लो असतो तो. ओके, नॅशनल इन्कम इज अ फ्लो अँड नॉट अ स्टॉक. STOCK.
ओके. सो नॅशनल इन्कम काय आहे की इट इज अ फ्लो. इट इज अ फ्लो. हा फ्लो आहे, हा स्टॉक नाहीये. म्हणजे इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टँड नॅशनल इन्कम, सो नॅशनल इन्कम इट शुड बी it should not be in a like what you can say की तो स्टॉक मध्ये नसावा, म्हणजे तो अक्युमुलेटेड केलेला नसावा, तो फ्लो असावा, त्याचा कंटिन्युएशन मध्ये असलं पाहिजे. ठीक आहे. नेक्स्ट लाईन मध्ये लिहा. whereas the national wealth, national wealth आपण म्हणतो की ऍसेट है ना, ऍसेट. whereas national wealth measures the stock of commodities held by the nationals of a country, at a point of time. Okay. So national wealth is related to stock of commodities and national income is related to the flow. Okay. So flow of goods and services. So आणि wealth मध्ये काय, national wealth मध्ये काय, तर जो stock commodities held by the nationals of the country at a point, that comes under national wealth. म्हणजे जी संपत्ती आहे लोकांकडे, तर ती संपत्ती त्या नॅशनल वेल्थच्या याच्यामध्ये येतं. ठीक आहे. पुढे लिहा. National income in pre-independence period. National income estimate in pre-independence period. साहिल, जे citizens आहेत ते सगळे येतील. Those who are citizens, they will come under their income will considered in calculation of this national income. Okay. Then national income during pre-independence period. So now again we need to consider what exactly happened when these the concept like national income evolved, or the concepts like how these British economists or the Indian economists during pre-independence period worked on the concept of national income. Okay, so that is just again, this is not very important, but just for consideration, just for your knowledge, that is important. Okay, so pre-independence period. त्याच्यामध्ये लिहा. Several estimates of national income were prepared in the British period. Several estimates of national income were prepared in the British period. The important personals. The important personals. आता आला. अरे माझा आता तुझ्या याच्यात काहीतरी प्रॉब्लेम आहे ऐश्वर्या. हा, बाकी लोकांना येतोय ना? हो सर येतोय. हो सर येतंय. तुझ्या याच्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. एक आणखी फोन ऍडव्हान्स आपटून बघ. पियुष काही पण सल्ले देऊ नको. ठीक आहे. ते उगाचच सल्ला तुझा अंमलात आणायची. दुसरा मोबाईल घेऊन द्यावा लागेल मग. ठीक आहे. ऐश्वर्या, काहीतरी तुझ्या नेटवर्क मध्ये प्रॉब्लेम असेल. नेटवर्कचा इश्यू आहे का तुला? कारण रोज तर तुझा व्यवस्थित राहतो ना, रोज व्यवस्थित असतं ना. आज नेटवर्कचा वगैरे इश्यू असेल काहीतरी. मग काहीतरी बघ थोडस. ते तू काय अशीच ऐकते की कानाला वगैरे लावून ऐकतेस? हेडफोन लावलेस का तू? हेडफोन लावले? हेडफोन ऐश्वर्या हेडफोन लावले का?
हॅलो, काहीच कळत नाही काय बोलतो. हेडफोन लाव ना, हेडफोन हेडफोन. हेडफोन लावू का? हा हेडफोन लाव नाही. हा फोन लावू का? होय होय हेडफोन लाव. हा डायरेक्ट आवाज कानात जाणार मग. तरी डाऊट आहे. ओके ठीक आहे, हरकत नाही. नाही कधी कधी होतं